For India to become a $5 trillion economy, then a $10 trillion economy, it has to be on the back of micro entrepreneurs, and the size of that micro entrepreneurship at the bottom level has to be extremely large. अभिनव, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि एको क्या है, वो कैसे डिफाइन करते हो आप? आपको ऐसे बहुत सारे दुकानदार दिखेंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योर दिखेंगे, जहाँ पे उनके दुकान में लिखा रहता है यहाँ पे सभी बैंकों में पैसा जमाया निकाला जा सकता है. A very large number of such micro entrepreneurs are working with Eco today. Close to 30,000 crores to 40,000 crores worth of transactions का कैश आउट होता है हमारे देश में, not via ATMs but via networks like Eco. Wow. And by the way, that number is growing. You talked about micro entrepreneurs and 400-500 million micro entrepreneurs in India. What kind of opportunity do you see they will get for these micro entrepreneurs to tap in next, say, 5-10 years? Today, on the show, we have a guest who started building somewhat similar to what UPI today is way back in 2007. The whole idea of having bank accounts directly on Nextdoor or probably on your mobile way back in 2007 might look like too early. But his journey started from there. But three more important aspects of his journey further. One, over the course of time, he has actually enabled over 5 lakh micro entrepreneurs. Second, for same, he once had Bill Gates at his office, standing by him or trying out his product, going to retailer, understanding the whole ecosystem. And third, there is one comic strip pinned in a museum in London where Chacha Chaudhary is talking about why to use their services. He is none other than co-founder Eco. I've known Eco for quite some time. I remember I saw a post where Bill Gates was standing next to him or his team on the newspaper, and that was probably the very early part of my entrepreneurial journey. So let's welcome today on the show, Abhinav. Hey Abhinav, thanks for coming here. Thank you so much, Ankit, for having me here, and thank you for the humbling introduction. Oh, I'm sure I'm going to have a lot of interesting conversation. You know, I know about Bill Gates, I know about Chacha Chaudhary incidents, and there are like 5 lakh micro entrepreneurs. This is going to be so amazing today. Looking forward to the conversation. Looking forward. Who are these micro entrepreneurs? Who are your customers? So for example, just to take जो मैंने अभी बोला, imagine Eco as a triangle. एक तरफ ब्रांड है, एक तरफ एक ऐसी ब्रांड है जो एक ऐसे कस्टमर पे पहुंचना चाहती है जो वो डायरेक्टली खुद नहीं पहुंच पा रही है. ठीक है. उसको वहां तक पहुंचाने के लिए there is a trained entrepreneur in the vicinity of the customer who's getting trained on the platform and taking the product to the customer. ठीक है. इसका लाइव एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट गुड़गांव से, बॉम्बे से, पटना से 50 किलोमीटर बाहर खोलना है, वहाँ ब्रांच नहीं है. ठीक है. तो हमारे प्लेटफॉर्म एक तरफ हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करते हैं. ठीक है. दूसरी तरफ हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट के लिए. ठीक है. जो लेट्स से पटना से 50 किलोमीटर दूर है. ठीक है. जो अपने या तो कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के घर जाके उनका बैंक अकाउंट खोल रहा है. ठीक है. या तो आप अगर वो कोई दुकानदार है, किराने की दुकान चलाते हैं या फोटोग्राफ की दुकान चलाते हैं या फार्मेसी चलाते हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि अब वो ट्रेंड है, तो अपने वॉक इन कस्टमर को बोल सकते हैं आप मेरे दुकान पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं. सो a brand is able to get to a customer that they were not able to get to through this deeply embedded micro entrepreneur in the vicinity of the customer of the society. जो हमने शुरू की तो ब्रांड पहले खाली बैंक होता था, अब बैंक भी है तो इंश्योरेंस कंपनी भी है तो लोन का कंपनी भी है तो आने वाले समय में तो मुझे पता है कि एंटरटेनमेंट की कंपनी, एडटेक की कंपनी, हर तरह की कंपनी एक ऐसे कस्टमर तक पहुंचना चाहती है जो वो खुद डायरेक्टली नहीं कर पा रही है. वो कस्टमर कंज्यूम क्यों नहीं कर पा रहा है? भाई लिटरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है, डिजिटल लिटरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है, डिजिटल मनी का प्रॉब्लम हो सकता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, फियर का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इन द जर्नी दैट द कस्टमर हैज टू गो थ्रू टू कंज्यूम द प्रोडक्ट. ठीक है. गुड एग्जांपल, यू एंड आई प्रोबेबली कंटिन्यू टू बाय आवर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू आवर एजेंट्स. हम और तुम तो आजकल वेबसाइट पे जाके खरीद ही सकते हैं, बट वी कंटिन्यू. देयर आर सम बिहेवियर्स व्हिच आर येट नॉट चेंज्ड. Right? So some behaviors will get demolished. ठीक है. But apart from behaviors getting changed, there are customers who need help or assistance in making that happen. ठीक है. Right?
तो पहले बैंकिंग थी, अब इंश्योरेंस भी आने वाला है, क्रेडिट भी आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा, एजुकेशन आएगा, बहुत सारे कैटेगरीज ठीक है, आएंगी और उसके ब्रांड्स आएंगे जो एक ऐसे कस्टमर तक पहुंचना चाहती हैं जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल्फ सर्विस मोड में कंज्यूम नहीं कर पा रही है, ठीक है, आज के दिन में, राइट? एक असिस्टेंस की नीड होती है, तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड दैट असिस्टेंस। बट एक फंडामेंटल डिफरेंशिएटर क्या है? आज मार्केट में दूसरे भी प्लेयर्स होंगे, कंपटीशन भी होगा, तो वो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है को और दूसरों में? आज के दिन में टेक्नोलॉजी तो इज सच अ लेवलर। हाँ ये बोलना कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो दूसरे लोग बना नहीं सकते हैं, आई थिंक इट्स हार्ड टू क्लेम। within closed doors we may claim it to some minor extent, but I think technology to is a fairly leveler, certainly in India यहाँ पे तो public infrastructure right, यहाँ पे UPI ले लो, आधार ले लो, this is fantastic. So at that level I don't think so there is a lot of competitive advantage. I think the competitive advantage really comes in the delivery of the customer experience, and if you break the customer experience into into the user experience, into the UI, into the customer care, अब वो सब I think again the devil is in the detail, right? Absolutely. Both angels and devils are in the details. Angels and devils are in the details. तो आपने अपना भाई आपका साइन अप प्रोसेस कितना आसान है, कितना मुश्किल है, लगभग 5 स्टेप मेरे में भी वही है, वो कंपटीशन में वही है। मैं कैसे करवा रहा हूँ, दूसरा आदमी कैसे करवा रहा है, ट्रांजेक्शन मैं कैसे करवा रहा हूँ, दूसरा आदमी कैसे करवा रहा है, right? I also very strongly believe that trust happens with consistency, and consistency happens with lack of human intervention. So in order to deliver good customer experience, I think there is a very high need to automate a lot of things as much as you can, right? आप जितना automate कर दोगे उतना आप consistent रिप्लाई दे पाओगे कस्टमर को, जितना आप कंसिस्टेंट रिप्लाई दोगे उतना धीरे धीरे वो ट्रस्ट बढ़ जाएगा। एंड आई डू बिलीव दैट दैट्स वेयर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफ इट लाइज, दैट्स वेयर इट इज। और सूनर और लेटर कहीं पे ये सब होता है, फर्स्ट टू रिलीज दैट प्रोडक्ट, फर्स्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो है, बट आई डोंट थिंक सो दे आर वेरी सस्टेनेबल, बट दे आर स्मॉल देयर आर सर्टेनली स्मॉल विक्ट्रीज दैट यू आर ऑलवेज एज अ कंपनी वांट टू स्टे अहेड, राइट? तो आप you are competing at multiple levels, right? So at the very core, I would say that, things like customer experience, customer grievance, customer complaints, I think those things is really the basement or the core of this foundation of it. Right? Uske upar you are, from a tactical perspective, aap commercial pe, you're trying to make sure that you get a better commercial deal. Or at a tactical level, you're claiming, I launched this first, I launched this second, I launched this feature first. But I don't think so. Those are really long-term competitive advantage. एक बार मुझे यूज केस, जैसे अभी जो हाउ डू कस्टमर्स, हाउ डू एंड यूजर्स यूज एको राइट नाउ, वो पूरा यूज केस मुझे एक्सप्लेन करिए। देखो, आई एम फर्स्ट कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रो एंटरप्रेन्योर, ठीक है? द रीजन टुडे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स लैच ऑन टू एको, एंड you would appreciate this a lot because तुम्हारी बिजनेस भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही है, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, is because they are genuinely, there are close to about anywhere between 300 to 500 million individuals who will become micro entrepreneurs in like 3 to 5 years. क्यों? Because utni job generation is tough, right? So we have the demographic advantage in the country, but the way to take advantage of that demographic advantage is for very large number of people to become micro entrepreneurs. Yep. And see, very large number of people cannot become entrepreneurs like you and me. The micro entrepreneur has to happen in extremely large scales. Right? Today, an Uber driver is a micro entrepreneur. People who come and deliver food to us today are micro entrepreneurs today. So they are, today, absolutely. Individuals are signing up to these platforms because the job is not there. And they can start to earn respectfully 20, 30, 40,000 rupees by participating in these programs, right? Likewise, like there are these platforms, Eko is also one such platform where people can latch on to either increase their earning or to start an earning. हमारा भी aim रहता है कि can we deliver 20,000 rupees of monthly earning to a micro entrepreneur through variety of services that we delivered on the platform, right? I am very, very optimistic that this perspective in India at this point in time has to grow, and not only for Eko.
it has to grow for this country. For India to become a $5 trillion economy, then a $10 trillion economy, it has to be on the back of micro entrepreneurs. And the size of that micro entrepreneurship at the bottom level has to be extremely large. We are attempting all digital and personal process to make sure that you understand and become trained on that platform. कि आपको आप किसी के लिए बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप किसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं, आप किसी के लिए उसको बैंक पे पैसा जमा करने में सहूलियत दे सकते हैं, आप किसी का विड्रॉ करने में आप हेल्प कर सकते हैं, आप मनी रेमिटेंस में हेल्प कर सकते हैं. Whatever portfolio services we deliver, we try and train the entrepreneur on that. Apart from training on the platform, we also try and train the entrepreneur on how to create the demand for this service. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. आज किसी भी बड़े शहर में आप जाओ, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं पे भी, एंड इवन स्मॉलर से स्टेट कैपिटल्स, आपको ऐसे बहुत सारे दुकानदार दिखेंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योर दिखेंगे, जहाँ पे उनके दुकान में लिखा रहता है यहाँ पे सभी बैंकों में पैसा जमा या निकाला जा सकता है. अच्छा. A very large number of such micro entrepreneurs are working with Echo today. Oh wow. तो आप जब वो तो एक नॉर्मल कस्टमर जब वैसा एक दुकान देखता है तो वहाँ पे वॉक इन करके मांग सकता है कि भाई मुझे ये बैंक अकाउंट का खाता खोलना है, अच्छा, पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है. एंड दिस इज रियली द एक्सपीरियंस of getting a basic banking services at a micro entrepreneur signed up with Echo is pretty much like getting a phone recharge. Wow. आप जाइए 500 रुपया दीजिए, आप जाइए 500 रुपया दीजिए, आपका पैसा जमा करना है, निकालना है, पैसा भेजना है, सब हो जाएगा. मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ जो आपके को फाउंडर अभिषेक सर ने मुझसे बहुत बार पूछा था, क्योंकि आपकी जर्नी में भी ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, एंड यूजर है, बट इनमें आपका कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर हमारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर है. मतलब आपका पूरा फोकस उनको इनेबल करने का. हाउ डू यू मेक मनी इन द होल प्रोसेस? दो तरीके से हम लोग वी मेक द इकोनॉमिक्स वर्क. वन इज जो भी ब्रांड माइक्रो एंटरप्रेन्योर के थ्रू एंड कस्टमर तक पहुंचती है, वो ब्रांड प्लेटफॉर्म को पे करती है. ठीक है. बैंक अकाउंट खुला, इंश्योरेंस पॉलिसी भी की, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो द ब्रांड जिसका भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिस्पेंसेशन हो रही है, वो ब्रांड प्लेटफॉर्म को पे करती है. ठीक है. Anywhere between 80 to 90% of what the brand is paying goes to the micro entrepreneur. ठीक है. We retain about 10 to 20% depending upon that transaction. This is from the brand perspective, the revenue. Second is from the entrepreneur. So you're giving a platform for the entrepreneur to expand his or her business, right? ठीक है. So we are typically trying to become like a SaaS platform for the micro entrepreneur. Interesting. Ideally try करते हैं कि हम एक monthly subscription fee उनसे चार्ज करें फॉर द एक्सेस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. उसके बाद अर्निंग उनकी है. अच्छा. इसीलिए वाइल जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग 80 to 90% प्लेटफॉर्म में माइक्रो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, गोइंग फॉरवर्ड वी एक्चुअली बिलीव दैट 100% ऑफ व्हाट द ब्रांड इज पेइंग शुड गो टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर. अच्छा. एंड वी शुड जस्ट चार्ज द माइक्रो एंटरप्रेन्योर फॉर द एक्सेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. ठीक है. The earning is of the micro entrepreneur. वही मेहनत कर रहे हैं on the creating on the market and customer and many such things, right? We are really giving them a tool to expand their business. So we should charge for the tool and not really take a penny out of their earning from the fact that they have dispensed a service. That is where we want to get to. We are not there. For a couple of services we are. इसमें हम 100% पास करते हैं. For some we are not. It's a journey that we are trying to get to. But principally we are saying जो brand हम लोग पे करता है वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर दे देना चाहिए. माइक्रो एंटरप्रेन्योर को हम एक टूल दे रहे हैं, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर से हम लोग उतना ले लेना चाहिए. कुछ सेंस अभी कितने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने एंड यूजर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, कितने ट्रांजैक्शन होते हैं? कुछ हाँ हम लोग लगभग 6 करोड़ एंड यूजर जो फाइनल 6 करोड़ लोग 17 साल में, ये महीने का बात नहीं. अच्छा. हाँ. लगभग 17 साल में अब 6 करोड़ से ऊपर लोगों ने कोई ना कोई सर्विस एको से ले ली है. 6 करोड़ फिर भी बहुत बड़ा नंबर है. या तो बैंक अकाउंट खोल लिया है, या तो इंश्योरेंस ले लिया है, या तो पैसा जमा कर लिया है, तो पैसा निकाल लिया है, तो पेमेंट कर दिया है, तो बिजली का बिल पे, कुछ ना कोई सर्विस 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ले लिया है. लगभग 5 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैव साइंड अप टू आवर प्लेटफॉर्म. अच्छा. एंड हम लोग लगे हुए हैं इस चीज़ को ग्रुप. 5 लाख मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, कितना बड़ा है ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर बेस इंडिया में? अगर ओवरऑल टैम की बात करें, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इंडिया विल हैव anywhere between 400 to 500 million माइक्रो एंटरप्रेन्योर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. ये होना ही है. अगर इस जर्नी में हम लोग नहीं प्रोग्रेस करेंगे तो एज अ कंट्री वी हैव टू, ये करना ही करना है. तो इस पूरे सेंस में
मतलब कितना आपका एक बिजनेस माइंडसेट होता है, कितना ये वाला माइंडसेट आता है कि यार इंडिया के लिए बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप वैसे सोचो। और मैं बार बार देख रहा हूँ ना, आप इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे हो कि इंडिया में ये होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, तो देयर इज अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एज वेल। तो where the country is, I think the country needs it. Like India needed UPI. India needs Aadhaar, right? मतलब these are, मतलब whoever built, thought, I think they should be blessed, right? It is such a good thing, right? Equally, I think our contribution in taking the economy forward and the micro entrepreneur is also important, right? We are taking all this public good. किसी को तो वो use case बनाना है ना जहाँ पे लोग latch on करेंगे, right? I think we just want to be one of those contributors who are significant contributors. Like हम लोग, our desire is not to be a marginal contributor. Our desire is to be a significant contributor to this growing category of people who need platforms to grow their micro entrepreneur enterprise, micro enterprise, right? We just want to be a significant contributor. And both from how important this is for India and also from my business perspective. Many aspects of running companies are glorified by ये valuation हो गया, ये net worth हो गई and all that. But I think behind all of that, there is a desire to create something substantial, something meaningful. Or I think the more deep you go into this journey, I think you go just your definition of why you are doing this also tends to evolve. भाई जब मैंने start की थी, हो सकता है my desire was what's the fastest way to get myself the best. Do I have that desire? Certainly I do. But has my definition expanded? Certainly it has. Probably that's why you hear me say, the country needs it. We have to do this. Somebody, one of us has to do it. किसी ना किसी को तो करना ही है ये चीज़। आप जो पेमेंट्स में, जो इंश्योरेंस, एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में जो आप कर रहे हो, हम कम्युनिकेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं। Certainly. हम बहुत उसको सिमिलरली देखते हैं ना। हमें लगता है कि हम एक पूरी नई कैटेगरी इंडिया में बना रहे हैं जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत डिफरेंट पावर देगा। मतलब हमारे इसमें काफ़ी हद तक जनरेटिव एआई, कन्वर्सेशनल एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें लगता है कि आज जो टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी कंपनीज, ऑल द बिग एमएनसीज एंड टेक कंपनीज हैज़, और हम उसको एक स्मॉलेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचा सकते हैं। उसके लिए वो कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब उस तरह का बिल्ड कर सकते हैं जो आज वो शायद सोच भी नहीं पा रहे हैं। उनके लिए कॉमर्स को इतना आसान बना सकते हैं, उनके लिए उनके माल को बेचना, उनके सामान को लोगों तक पहुंचाना इतना आसान बना सकते हैं जो आज वो सोच भी नहीं पा रहे। तो एट द एंड हम दोनों की जर्नीज स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पर एक कन्वर्ज कर रही है, जहाँ हम देख रहे हैं कि वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स शायद इस देश को ड्राइव करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल। That's going to be the reality. करने Absolutely. हाँ होना ही। What do you think is the next big driver to make it, probably to the last mile? UPI is here and is bound to increase, right? And I think I may be right, not necessarily the exact number, but I think we have close to about unique users of UPI who have used it even once. Today stands, I think, about 200 million. करोड़ लोगों ने यूज़ किया अभी तक इस चीज़ पर भी, right? So I'll tell you one of the very interesting things, and you and I wouldn't have even realized it. अच्छा, is that UPI जब सेटअप करते हैं तो UPI सेटअप करने के लिए, फर्स्ट टाइम सेटअप करने के लिए ना डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। हाँ, डेबिट कार्ड को सेटअप करने के लिए आपको पिन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और पिन कभी कभी आपको रजिस्टर्ड पोस्ट पर आता है। हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका रजिस्टर्ड एड्रेसेस नहीं होते? हाँ, राइट। कितने बैंक अकाउंट जो हम लोग खोल रहे हैं उसमें डेबिट कार्ड जा ही नहीं रहे। तो वो डेबिट कार्ड इशू ही नहीं हो रहा है। अच्छा, बिकॉज डेबिट कार्ड अंकित जो इशू होना है ना, इट डजंट हैव टू बी कुरियर टू गुड़गांव, इट हैज टू बी कुरियर 500 किलोमीटर्स आउट ऑफ गुड़गांव। ट्रू, इन अ नॉन रजिस्टर्ड एड्रेस, राइट। एक बहुत अच्छा इनोवेशन है विच हैज गॉन अननोटिस्ड, विच इज नाउ यू कैन सेट अप योर यूपीआई यूजिंग योर आधार नंबर। अच्छा, अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एंड दिस इज वेरी रिसेंट, 3-4 months बैक। अच्छा, आई डोंट नो। अब देखो हम लोग भी क्या है ना, हम लोग भी तो रजिस्टर्ड हो गए हैं। जो हमारे पॉपुलर यूपीआई ऐप्स है उससे तो हम रजिस्टर्ड है। तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि जो हमारे पॉपुलर यूपीआई ऐप्स है, हैव दे आल्सो अलाउड ऑनबोर्डिंग विद आधार नंबर? गॉट इट। मुझे नहीं पता, अभी तक तो हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं किए कभी। आप एक्सप्लोर ही नहीं किया। मतलब यूपीआई इज हियर टू स्टे। देयर इज, आई थिंक देयर इज यूपीआई 123 which is also about leveraging UPI on feature phones. This is here to stay. And this is here to grow. This is a wonderful technology. This must grow in India. It is certainly for the good of the country.
माई लिमिटेड पॉइंट इज, हम लोग ने वो भी टाइम देखा जो खाली स्टोरेज था। अब ये देख रहे हैं कि जहाँ पे लगभग 200 करोड़ लोग या 20 करोड़ लोग, 200 मिलियन पीपल हैव यूज्ड यूपीआई, तो ये नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है। एंड देयर बी लॉट मोर पीपल हु विल स्टार्ट टू यूज दिस। इसमें तो वैसे नेचुरल एक आप देखो तो नेटवर्क इफेक्ट है, मतलब मोर पीपल गेटिंग एडेड, मोर ट्रांजैक्शन हैपनिंग, दैट्स एक्चुअली पुलिंग अप मोर पीपल एनीवे। एब्सोल्युटली। और शायद इसलिए एटलीस्ट अभी मैंने अपने इकोसिस्टम में ऐसे केसेस शायद नहीं देखे अब रिसेंट, अगर मैं पिछले 1 महीने बताऊं, जो कह रहे यूपीआई नहीं है या जो कह रहे नहीं मतलब कैश ही होगा। मेरा अपना एक जो अगर मैं कहूँ उस बबल में मैं देख पा रहा हूँ शायद 99% इफ नॉट 100 वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। let me share something with you that just based on government's direct benefit transfers जो बैंक अकाउंट में जाते हैं, close to 30,000 crores to 40,000 crores worth of transactions का कैश आउट होता है हमारे देश में, not via ATMs but via networks like Echo. Wow. And by the way, that number is growing right now. अच्छा। By the way, so is UPI. I don't think so. These are मैं ये नहीं बोल रहा हूँ these are competing. The way the economy is growing for our country, both will grow to a very large. Maybe there is at some point in time, maybe the cash out starts to decrease, right? So there are many aspects to this, right? Matlab, I think, if I'm not mistaken, I think 80% of Indian economy is built on small businesses, right? Small businesses to a very large extent continue to remain informal in our country. This could be due to many reasons. Like ease of business के index में हम कहाँ हैं, tax कैसे भरा जाता है, कितने सारे हो सकता है just to get your business registered properly and run it through all the proper compliances. It is hard. It may be easy for you and me. We have the right consultants to advise us to get us going. Yep. But a smaller enterprise who doesn't have these capabilities, capacities for people to help, they end up running informal businesses, which is true, right? कितने सारे हमारे देश में entrepreneurs informal businesses run करते हैं। Absolutely. जहाँ पे informal business होगा वहाँ पे salary कैसे देगा वो? फिर वो कैश में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ही कैश में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सैलरी, तो मतलब तुम ही सोचो कि भाई तुम्हें अगर सैलरी कैश में मिल रही होती, would you go to a bank branch and deposit the money before you start using UPI? Probably not, right? Because जब आप वैसे कमाओगे तो आप 30,000 ही कमा रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि आप फॉर्मली 5 लाख रुपए वैसे कमा रहे हो। अगर आप उस सेटअप में हो, उस सेटअप के पार्ट हो, तो आप प्रॉब्ली 30,000 रुपए कमा रहे हो। The initiative for a normal citizen who's earning 30,000 rupees to go to a bank branch and deposit the money and then start using these electronic modes is very incremental, right? Got it. क्या लगता है आपके अभी नेक्स्ट 5 years जर्नी आप कैसे देखते हो, मतलब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स, आपकी ऑफरिंग्स कैसे बदलेगी, आप कस्टमर बिहेवियर अभी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दीस टेक जो है वो कैसे बदलने वाला है? पहले हम लोग को लगता था ना कि जब हम लोग अपनी नेटवर्क बनाते हैं, जब माइक्रो एंटरप्रेन्योर साइन अप टू एको, हम लोग को लगता है कि एको का नेटवर्क बन रहा है, राइट? हम इस नेटवर्क को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है? इस माइंडसेट से हम लोग ने बहुत दिन कंपनी चलाई, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग ने फंडामेंटल चेंज देखा कि एको ने बोला कि वी शुड अलाउ अदर्स टू बिल्ड अ कंपीटिंग ऐप। जब हम लोग ने एपीआई स्ट्रेटजी को खोली, ठीक है, राइट, विच वाज टू से in order to get market share, others should be allowed to drive their business, right? Today, जब मैं अपनी business model को मैंने बोला था कि we are really giving a tool to the micro entrepreneur. So हम तो और इस चीज़ को realize कर रहे हैं कि at the end of the day, the driving of the business actually happens by the micro entrepreneur. हमारा काम है उसको tool पहुंचा देना, right? And to provide the most powerful tool to the micro entrepreneur, right? तो हम तो धीरे धीरे हम लोग तो यही देख रहे हैं कि rather than visualizing ourselves as a network, we today visualize ourselves as a tool for the micro entrepreneur. तो I think जिस तरीके से इसका मतलब क्या होता है कि पहले हम प्राइसिंग डिफाइन करते थे, ठीक है, अब हम बोलते हैं ना, हम अपने माइक्रो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं आप ही प्राइसिंग डिफाइन कर। कहीं पे हम बोलते हैं कि ना कि हम ये मैसेज भेजना चाहते हैं, हम बोलते हैं अच्छा आप डिसाइड कर लो, आपने ड्राइवर सीट पे उनको बैठा दिया। हाँ, सो एवरी डे वी आर सेइंग जो डिसीजन एको लेता था ना, वो डिसीजन अब माइक्रो एंटरप्रेन्योर को लेने दिया जाए,
देखिए हम लोग ना कोई ऐसी प्रोडक्ट करते हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज भी करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम भी अपने प्लेटफॉर्म में QR कोड देते हैं, ठीक है भाई, QR कोड तो पेटीएम भी देता है, Amazon भी देता है, गूगल भी देता है, फोन पे भी देता है, उनका स्केल ही अलग है देन टू व्हाट एको ऑपरेट्स एट, राइट। तो हम लोग ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स को को अपना प्लेटफॉर्म देते हैं जो बोलते हैं ना, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ, तो वो बोलेंगे ना कि मुझे अपना नेटवर्क ना खाली सेक्टर 30 में चलाना है, एको को अपना नेटवर्क तो इंडिया में चलाना है। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर है जो बोल रहा है ना मैं 50 लोग का नेटवर्क बनाऊंगा सेक्टर 30 और गुड़गांव में। अच्छा, ठीक है, तो बहुत ही उसका जो स्केल का जो एस्पिरेशन है अलग है, छोटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग है, राइट। उसी माइक्रो ज्योग्राफी में वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है। बाय द वे व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज व्हेन entrepreneurs in that local area are empowered with the tool to customize their product, pricing, communication, customer care in that micro geography. By the way, they have the ability to compete with the largest of brands in their locality. interesting. I'm happy to claim that I have partners who would probably be doing more QR code business in that sector 30 than any of these big brands can compete. Wow. Because उस entrepreneur का ना ability to market, brand, customer service इतना strong है उस segment पे ना that the laws of competition changes. Wow. So the power of micro entrepreneurs, power of localized businesses, हम लोग अपने बिजनेस में इसको नोटिस करते हैं, इसको देखते हैं एंड ओनली रियलाइज करते हैं कि हाउ कैन एको, आप देखो ना, और बैक सीट में कैसे आ जाए एको, और फंड ड्राइव कैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स करें,